अगर आप हमको मारिएगा तो हम रोएंगे नहीं क्या? यकीनन रोएंगे और रास्ते में उतर के रोएंगे। जो लोग कर रहे हैं, अगर रास्ते में उतर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। देखिए, पीसफुल तरीके से करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा कि अपनी आवाज उठाए, जरूर प्रोटेस्ट करें, हर जगह उसके दिखाना चाहिए कि हम लोग को इस बिल से आघात हुआ, हम लोग को चोट लगी है, हम लोग के दिल में लगा, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले। ये जो आगजनी हो रही है और जो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका भी ध्यान। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड मीटिंग में फैसले के बाद चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी ने दी जानकारी। वक्फ संशोधन बिल जो कि अब एक एक्ट यानी कानून बन गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग इसकी खामियों को लेकर अब भी इसे मानने को तैयार नहीं है। और इसी बीच वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ औकफ यानी पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया है। वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शाहिदुल्लाह मुंशी ने इस बाबत मीडिया को बताया कि ये कानून पूरे तौर पर असंवैधानिक है और इससे आने वाले समाज के हर वर्ग को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त वक्फ बोर्ड के अंडर कई होटल्स हैं जहां पर बच्चों के रहने और खाने पीने की सुविधाएं दी जाती है, उन बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद की जाती है। मगर अब इस नए कानून से ऐसे छात्र छात्राओं को अब वक्फ बोर्ड से ये सुविधाएं मिलना बंद हो जाएगा, जो कि राइट टू एजुकेशन, जो हम सबका बेसिक फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ है। वहीं वक्फ बोर्ड के मेंबर और सांसद नदीमुल हक ने भी पुरजोर इस नए कानून की मुखालफत की और कहा कि ये कानून किसी भी कीमत पर हमें मंजूर नहीं। इस अवसर पर वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हजरत मौलाना कारी फजलुर रहमान, मौलाना मेहर अब्बास रिजवी, आफाकुर खान वगैरह भी मौजूद थे। इन सभी ने इस नए कानून को न सिर्फ मुसलमान विरोधी बल्कि देश को बांटने वाला कानून बताया और सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने की बात कही। এর আগে যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এলো, বিল 24 এলো, আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারিনি যে বিলের যে প্রপোজিশন গুলো ছিল আমরা পড়ে দেখেছি যে এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের কমিউনিটির এগেইনস্টে, ওয়াকফের এগেইনস্টে। সুতরাং বিলটাকে আমরা ফার্দার অ্যামেন্ড করার জন্য, বিলটাকে রেকটিফাই করার জন্য আমরা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি অ্যাট দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লেভেল। কিন্তু যখন ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 25 এলো, তখন আমরা দেখছি যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন কোনোভাবেই কনসিডার করা হয়নি। ইভেন আমরা যখন কেপিসির সামনেও আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম, আমাদের যে স্পিচ দিয়েছি, বক্তব্য রেখেছি, ইন রাইটিং ওরাল সাবমিশন যা করেছি, তার কোনোটাই কনসিডার করা হয়নি এবং যা বিলে ছিল সেটাকে হুবহু ছাপিয়ে দিয়ে নতুন অ্যাক্ট তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের মনে হয় এই 8 তারিখে যে নোটিফিকেশন হয়েছে, 8 তারিখে নোটিফিকেশন হওয়ার পরে এটা অ্যাক্টে রূপান্তরিত হলো, অ্যাক্টে মডিফাইড হলো। এই অ্যাক্ট কিন্তু আমাদের কোনোভাবেই হেল্প করবে না, বরং ওয়াকফের ক্ষতিই হবে। শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল না, থ্রু আউট ইন্ডিয়াতে এর একটা ইম্প্যাক্ট হবে, ক্ষতি হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা এখন একমাত্র রাস্তা হচ্ছে যে কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া। যে এই আইন যেটা হয়েছে, আমার মনে হয় যে এই আইনের বেশিরভাগ অংশটাই মানে হিট করছে কনস্টিটিউশনকে, কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনের এগেইনস্টে হয়েছে এবং প্রভিশন গুলো আলট্রাভাইরাস টু দি কনস্টিটিউশন। যদি এই অ্যাক্টটাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় জুডিশিয়ারি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে এবং সঠিক ডিসিশন নেবে। আর জুডিশিয়ারিতে যাওয়া ছাড়া এখন আপাতত আমাদের সামনে কিছু নেই। সেই জন্য আমরা আজকে বোর্ডের মিটিং ছিল, সেই মিটিং এ আমরা রেজলিউশন নিয়ে নিয়েছি যে আমরা আপাতত এই অ্যাক্টটাকে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফোরামে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রসিডিং দাখিল করব। যেখানে যেখানে করা সম্ভব সেখানে সেখানে। যদি দেখি যে সবকটা ক্লজে আমাদের ক্ষতি করছে, তাহলে সবটাকেই চ্যালেঞ্জ করবো। কারণ দেখুন, সবটা এখন বলা হয়তো ঠিক হবে না। আমি অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটা এবং একটা পড়ার পরে দেখেছি যে দু একটা প্রভিশন ছাড়া বাকি সবগুলোই কিন্তু আমাদের আনেক্সিং এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটকে হিট করছে। আর্টিকেল 14, 15, 19, আর্টিকেল 21 এইগুলোকে হিট করছে। এগুলো যদি হিট করে, আমার মনে হয় সব ডিক্লেয়ার করা উচিত বাই দি কোর্ট। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট कोर्ट विल डिक्लेयर टू बी अदरवाइज। मेरा जो पर्सनल स्टडी जब तक हम देखे हैं कि 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, সেখানে যে তিনটে লিস্ট আছে, লিস্ট 1, লিস্ট 2, লিস্ট 3, লিস্ট 3 তো কনকারেন্ট লিস্ট। আমাদের কিন্তু এই ওয়াকফটা কোনো লিস্টেই নেই। কিন্তু যেভাবে হোক ওয়াকফ এসছে, ওয়াকফের উপর সেন্ট্রাল লেজিসলেশন হচ্ছে, এটা হওয়া উচিত হয়নি। আর কনকারেন্ট লিস্টে থাকলেও আলাদা কথা, ট্রাস্ট আছে, রিলিজিয়াস এনভায়রনমেন্ট আছে, কিন্তু ওয়াকফ স্পেসিফিক্যালি কোথাও বলা নেই। আর ল্যান্ডটা তো স্টেট লিস্টেই আছে।
ল্যান্ডটা স্টেট লিস্টে আছে, ল্যান্ডের উপর স্টেটের জুরিডিকশন আছে। এবার যেহেতু আমাদের স্টেট, আমাদের কনস্টিটিউশন ফেডারেল স্ট্রাকচার, সুতরাং যাই করুক না সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেটের সঙ্গে কনসাল্ট করেই করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট কি করবে, দ্যাট ইজ আপ টু দি সুপ্রিম কোর্ট, আই ক্যানট ওপাইন। As per law, As per I am concerned, yes. as far as I have gone through the act, আমার মনে হয়েছে অনেকগুলো প্রভিশন আছে দ্যাট আল্টারভায়ার্স দি কনস্টিটিউশন। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ধরুন ওয়াকফের আন্ডারে আমাদের বেঙ্গলের কথাই বলি, অন্য জায়গায় যা আছে, আমাদের আন্ডারে প্রচুর হোস্টেল আছে, ক্যালকাটা আছে, ক্যালকাটার বাইরে আছে, ডিস্ট্রিক্ট আছে, হোস্টেল আছে, আমরা স্টাইপেন্ড দিই, আমরা টাকা হেল্প করি ছাত্রদের। সুতরাং এই যে প্রভিশন গুলো করা আছে, দিজ আর অল মেনটেন ফ্রম দি ওয়াক ফান্ড। তো ওয়াক এস্টেট থাকলে তার ইনকাম আসলে ওয়াক ফান্ড গ্রো করবে, ওয়াক ফান্ড থাকলে ওয়াক ফান্ড থেকে আমরা এই বাচ্চাদেরকে প্রোভাইড করতে পারি, যেটুকু করি, হোস্টেল দিয়ে, অ্যাকোমোডেশন দিয়ে, ফ্রি অ্যাকোমোডেশন দিয়ে করবো। এবারে এগুলো হচ্ছে কি তাদের ডেভেলপমেন্ট বাই ওয়ে অফ এডুকেশন, সেটা হ্যাম্পার্ড হচ্ছে। এখন এডুকেশন, রাইট টু এডুকেশন, দিস ইজ এ রেকগনাইজড রাইট আন্ডার কনস্টিটিউশন আর্টিকেল 21A। তারপরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে আর্টিকেল 21 ছিল, এখন 21A তে রাইট টু এডুকেশন ঢুকেছে। দিস ইজ অলসো ফান্ডামেন্টাল রাইট। তাহলে এই ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি আপনি রাইট টু এডুকেশনটা কেড়ে নেন বা ইন্টারফেয়ার করেন, তাহলে দিস ইজ ইন্টারফেয়ারেন্স উইথ দি রাইট আন্ডার আর্টিকেল 21A অফ দি কনস্টিটিউশন। তাহলে সেই কারণে আমার মনে হয় যে চ্যালেঞ্জ করলে সেটা কোর্টে বিচার হবে, কোর্টে বিচার করবে। কনস্টিটিউশন যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে সেখানে যে সমস্ত লোক কাজ করে খাচ্ছে, তাদের এমপ্লয়ি, তাদের যে রেমুনারেশন এবং কিছু যা আসছে, সেগুলো হ্যাম্পার হচ্ছে। দিস ইজ অলসো এফেক্টিং দি রাইট টু লাইফ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जेपीसी के मैं था तृणमूल कांग्रेस की जानिब से, कल्याण बनर्जी भी थे, मैं भी था, और जेपीसी में हम लोगों ने একটু ক্যামেরাটা সবাইকে কভার করে নিন। হ্যাঁ, और जेपीसी में हम लोग जब गए तो बहुत सारी बातें उठी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की मेजोरिटी थी। बीजेपी माने इंडिया की मेजोरिटी थी, और वहां पर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के जो लोग सब थे वो पूरा बीजेपी को सपोर्ट किए जेपीसी। लिहाजा कुछ प्रोविजन हम लोग उसमें अपना डाल सके, लेकिन सब प्रोविजन नहीं हुआ। और जो बेसिक प्रोविजन जिसके हम लोग मांग कर रहे थे, जैसे ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 साल का भी जो प्रोविजन हो गया, ये वाकई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो लोग उल्टा इसको अब और कड़ा कर दिए कि नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग बट डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑल्सो। क्या आपको ये दिखाना भी होगा कि आप मुसलमान हैं, तो इसके क्या माने? क्या आपको दाढ़ी रखना होगा, क्या टोपी पहनना होगा, या कौन अथॉरिटी होगी ऐसी जो ये 5 साल का सर्टिफिकेट देगी? तो ये सरासर खाली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, खाली एंटी फेडरल नहीं है, बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ, अनरीजनेबल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। और ये जैसे अब 5 साल का प्रोविजन हो गया, अब आप बताइए क्या एक नया वक़्फ बन सकेगा? कोई नहीं बना सके जब तक उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिस करे। कोई नया वक़्फ बनाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया। 5 साल का ये सर्टिफिकेट कौन देगा? यही तो मेरा सवाल है, आप हमसे कर रहे हैं। हमने तो वहां पर मंत्री से पूछा कि कौन देगा सर्टिफिकेट, वो तो अपने जवाब में नहीं बताया, और बीजेपी इस पर खामोश है। लिहाजा मेरा जो कहने का है कि ये सीधा सीधा एक पॉलिटिकल बिल है जो मुल्क को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का है, ताकि वो इसका पॉलिटिकल बेनिफिट रीप कर सके। सीधा सीधा बात। लीगल पॉइंट जो है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इसको जो भी कोर्ट में हायर अथॉरिटी में इसको चैलेंज करेंगे, और इसके लिए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को यहाँ पर रिलीफ मिले। लेकिन क्यों किया, कौन सर्टिफिकेट देगा, अभी क्या होगा, नया वक्त बनना बंद हो। नदीम साहब, आज ममता बनर्जी ने आज नेताजी इंदौर में एक मीटिंग में कहा कि हम इस बिल को, हम इस लॉ को बंगाल में इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे, तो क्या बंगाल इससे बचा रहेगा या फिर बंगाल में असर पड़ेगा? देखिए, कानून जब बन जाता है जी, देश के लिए बनता है जी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट के हाथ। जी, ममता बनर्जी अगर बोली तो हम लोग को उस पर भरोसा रखना हो। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वोट किया जा रहा था तो टीएमसी के 3-4 एमपी वहां मौजूद नहीं थे, इसमें से देव अधिकारी है और भी कोई एमपी है जो वहां पर मौजूद। शताब्दी राय, इसमें देखिए, हम लोग बिल में फर्स्ट डे से अपोज किए, और लोकसभा में भी हम लोग अपोज किए, वोट किए, राज्यसभा में भी अपोज करके वोट किए। हो सकता है हमारे राज्यसभा में भी हमारे सुब्रत बख्शी नहीं थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो जो नहीं थे उनके वजह, और वो लोग पार्टी से समझेंगे, उनसे बात करेंगे।
कि जो जो वर्क प्रॉपर्टी है और जहां जहां है, अगर अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो 6 महीना और उसके बाद कुछ 6 महीने के अंदर जो नहीं कर पाए वो उनके लिए भी एक सेक्शन है कि भाई आप ट्राइब्यूनल से परमिशन लेकर और 6 महीना और के अंदर कर। तो हम तो चाहेंगे कि जितना वर्क प्रॉपर्टी है इमीडिएटली आप लोग अप्लाई कर देते उसके 6 महीने के अंदर पूरे मुल्क में, खाली बंगाल में नहीं, पूरे मुल्क में आप लोग इमीडिएटली इसके लिए अप्लाई कर दिए। अप्लाई कर करके इसमें आप लोग इसके तहत आ जाए ऑफिशियल जायज। हम अगर आप हमको मारिएगा तो हम रोएंगे नहीं क्या? यकीनन रोएंगे और रास्ते में उतर के रोएंगे। जो लोग कर रहे हैं, अगर रास्ते में उतर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। देखिए, पीसफुल तरीके से करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं उनसे अपील करूंगा कि अपनी आवाज उठाए, जरूर प्रोटेस्ट करें, हर जगह उसके दिखाना चाहिए कि हम लोग को इस बिल से आघात हुआ, हम लोग को चोट लगी है, हम लोग के दिल में लगा, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले। ये जो आगजनी हो रही है और जो लोगों को तकलीफ हो रही है, इसका भी ध्यान। सर, जो न्यूज आ रही है यूपी गवर्नमेंट ने वक्फ का जितना संपत्ति उसका सर्वे का ऑर्डर दिया है, डू यू थिंक इट इज वेरी अलार्मिंग फॉर अस? अलार्मिंग? अगर देखिए, एक चीज तो है कि आपका जेन्युइन बात हो तो जितना सर्वे हो, जो जेन्युइन है तो जेन्युइन रहे, इसमें तो कोई बात नहीं है। अगर आपसे कोई पूछा जा रहा है कि ये सर्वे में, सर्वे तो अभी भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, इसमें अलार्मिंग की क्या बात है? जिसके पास जो कागज है, जिसके पास अगर यूसेज का है, दिखाएंगे अपना। पहली बात है, जो 5 साल की प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात जो हुई है, उसमें जेपीसी के सामने मैंने एक बात कहा, जो बात नदीम भाई बोले वो तो बात है दूसरे। अब इसके अलावा ये एक्ट होने के बाद कोई भी, देखिए, वक़्फ़ प्रॉपर्टी दो किस्म की, एक है मूवेबल, एक होता है इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, जायदाद, तालाब, खेती। मूवेबल मतलब हुआ रुपया, पैसा, सोना, चांदी जो मजार वगैरह में किया जाता है, दोनों वक़्फ़, मूवेबल इमूवेबल दोनों। क्योंकि 5 साल का जो मसला है, इसका सारे मजार में ये लिखना पड़ेगा, कोई भी नॉन मुस्लिम मजार में जाके और डोनेट नहीं करे, चादर नहीं चढ़ाता, रुपया नहीं दे पाता, जो आमतौर में हुआ करता है। इसका वजह क्या है कि वो 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है। और हम लोग को पूछना पड़ेगा, भैया आप है मुसलमान 5 साल का, तो आप आके यहां पर डोनेट करिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत गलत चीज है। दूसरी बात है, लिमिटेशन एक्ट के बारे में सोसाइटी में एक बहुत दूसरी तरह का एक मैसेज दिया हुआ है कि जो प्रॉपर्टी कब्जा में है 12 साल से ज्यादा, वो और वक़्फ़ नहीं रहे। 1995 से पहले लिमिटेशन एक्ट जो था वो लागू था वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर भी। 95 से पहले जो एक्ट था वो क्या था? वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी में 12 साल से ज्यादा कोई अगर बस विदाउट एनी अथॉरिटी ऐसे ही बस कब्जा कर, तो वो प्रॉपर्टी सेकुलर हो। 95 को एक्ट का अमेंड किया गया, वो सेक्शन को हटा दिया गया, लिमिटेशन एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द वक़्फ़। ये बहुत अच्छी बात है। अभी के सरकार ने क्या किया है, उसको लिमिटेशन एक्ट को फिर लागू कर दिया है कि वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई किया। इसमें कंफ्यूजन ये है कि लोग सोच रहे हैं कि जो 12 साल ऑलरेडी जो ज्यादा हो गया वो और वक़्फ़ नहीं रहेगा। नहीं, वक़्फ़ एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव। मतलब ये बिल जिस रोज आया 8 तारीख, उसके बाद आज के बाद से 12 साल, तो सारे लोगों को ये मैसेज मैं देना चाहता हूं आपके जरिए में कि कोई भी अगर किसी जगह में काबिज है तो या तो उससे सेटलमेंट करके उससे रेंट लीजिए ताकि वो लीगलाइज हो जाए, या उसके ऊपर में केस करिए कोर्ट का। तो फिर ये 12 साल क्या 1200 साल में अगर हो जाए तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी, ये बहुत जरूरी है। और सेम एक्ट में 2 तरह का चीज हुआ। एक बार लिमिटेशन को उठा दिया इन लोग, मतलब जो एप्लीकेशन होगा लिमिटेशन के जरिए में
वक्फ प्रॉपर्टी सेकुलर हो जाए, लेकिन वक्फ बाय यूजर जो 12 साल का, अगर 1000 साल भी अगर हम उसमें काबिज है और अगर वो इनरोल्ड नहीं है तो और वक्फ नहीं। सेम एक्ट में दो तरह का चीज है, वक्फ बाय यूजर, वक्फ और नहीं रहेगा अगर वो इनरोल्ड नहीं है, और लिमिटेशन एक्ट जो है वो अप्लाई होगा वक्फ प्रॉपर्टी में, सेकुलर होगा, दोनों उल्टा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो सारे लोगों को जानना चाहिए। ये बाकी हमारे काली साहब भी चलिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें हमारे मीडिया के लोग शामिल हुए। वक्फ की जो वक्त है फरमावत तो लादी गई है, उसके बारे में हमारे मोहतरम नदीम साहब, लीडर अखबार मशीद और हमारे बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे खजाना ने बड़ी तस्वीर से रोशनी डाली। मैं उन बातों को अब दोहराना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि ये वक्फ बिल जो लाया गया ये है क्या और इसके जरिए से हुकूमत क्या चाहती है। जाहिर है कि इसमें हुकूमत का मंशा साफ नहीं है और वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को इस सिलसिले में परेशान किया जाए। तो जो कानूनी पेचीदगी है इसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल तो अब बन गया है और बिल वापस होने दे रहा, लेकिन उसके अंदर जो खराबियां हैं उसको हम लोग कोशिश करके हटवा सकते हैं अगर हम लोग कोशिश करें। तो आज की मीटिंग में हम लोगों ने फैसला किया कि प्रेस को बुलाना चाहिए और मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड को इस सिलसिले में कदम उठाना चाहिए। उसी कदम उठाने के सिलसिले में ये पहली कड़ी है कि आप लोगों से हम मुखातब हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी और हमारे बोर्ड के अरकान भी, कि हम लोग इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कलकत्ता हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और वहाँ हम लोग अपनी अर्जी दायर करेंगे। भाई हमें ये बिल मंजूर नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि इससे सिवाय खराबी के हमें कहीं कोई भलाई दिखाई नहीं दे रही। अब जैसा कि अभी हमारे अफा मुस्तफा साहब ने बताया कि एक ही एक्ट में दो चीजें हैं, एक है भी और एक नहीं भी है, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी गवर्नमेंट कानून बना रही है और उसके इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो इस तरह से बच्चों को खेत क्यों बनाती है? ये निर्मित नहीं है, बल्कि एक तरह से खिलवाड़ मुसलमानों के साथ किया जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी के साथ। लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसमें जो भी नकाइस हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत से भी अपील करते हैं कि दोबारा आप इस पर नजरसानी कीजिए और इसमें जो भी गड़बड़ियां हैं इसकी वजह से लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जा सकती है, मस्जिदों पर, दरगाहों पर, मदारिस पर जा सकती है, ये इदारे खत्म हो सकते हैं, ये मिट सकते हैं। ऐसी चीजों को उसमें से रोकना चाहिए। इसलिए हम जोर अपील करते हैं अपने हुकूमत से, गुप्ता से भी हमने ये अपील की है इससे पहले की कॉन्फ्रेंस में कि आप बड़ा मेहरबानी बंगाल के असेंबली में कानून लाइए, बिल बनाइए और इस बिल को असेंबली में रिजेक्ट करवाइए, जैसा कि तमिलनाडु ने किया है, कर्नाटका ने किया है और जो एक जगह में हुआ है ऐसा, उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बंगाल में भी हमारी ममता बनर्जी साहब का बिल को रिजेक्ट करवाएं।